this video we will continue the discussion on circular motion, right? अच्छा, in the last video I told you few examples of circular motion. मैंने आपको कहा था कि इन examples को learn कर ले because in this chapter we will deal with the similar situations, right? I also told you that there is a resultant force which is required to move an object in a circular path, and that resultant force always point towards the center of circle, and the name given to that resultant force is centripetal force. ठीक है, सो हर ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल में मूव कर रहा होता है उस पर रिजल्टेंट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट कर रही होती है. ठीक है, लेट्स सी दिस एग्जांपल. मैं आपको इस एग्जांपल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. सी दिस वॉल. आई हैव टाइड दिस पर्सन विद द वॉल यूजिंग दिस रोप. ठीक है, कीप इन माइंड दैट दिस रोप इज इनएक्सटेंसिबल. इस रोप में जो स्ट्रेच प्रोड्यूस नहीं हो सकता, किसी किस्म की इलास्टिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, राइट? दिस रोप इज फुली स्ट्रेच्ड एंड आई आस्क दिस पर्सन टू वॉक अलोंग दिस गाइडेड लाइन. ठीक है, इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू वॉक अलोंग दिस डॉटेड लाइन? आप लोग खुद सोचें कि जब ये इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग वॉक करने लगेगा, सो ड्यू टू पुल ऑफ दिस रोप ये स्ट्रेट लाइन में वॉक नहीं कर सकता, rather he will opt this curved path, right? He will opt this curved arc because of the pull of the rope, right? So which force is not letting this person to walk along a straight line? Rather he is moving in circular motion. Think of it. The force is tension, and tension is pointing towards the center of circle, right? So in this case tension is providing centripetal force. Let's see कि जब person इस point पे पहुंचेगा तो rope की position ये होगी. Once again the tension is pointing towards the center of circle and tension is equal to centripetal force. तो ये एक बहुत सिंपल सी बेसिक सी एग्जाम्पल है जिसमें हमें पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन में, कर्व्ड मोशन में द नेट फोर्स इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स the center of circle and that net force is called centripetal force. Let's understand some of the terminologies of circular motion, right? तो firstly आप लोग लिखिए angular displacement. The symbol for angular displacement is theta. ठीक है, आप लोग इसकी definition लिखें. It is an angle subtended by an arc, angle subtended by an arc at the center of circle, at the center of circle. Let's try to understand it. Let's suppose that this is a curved track, right? And this is the center of this curved track. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये है. Let's call this position A. ठीक है, and he starts to move along this line and he reaches this position B. ठीक है, so how much angle has he covered? ज़रा देखिए, एंगल को आप लोगों ने मेजर करना है from the center of circle, right? So initially the object was present along this line and now the object is present here. ठीक है, so what is the angle formed by this object at the center of circle? This angle is angle theta. This angle is called angular displacement, right? Angle subtended by an arc, right, at the center of circle. आप लोग इसकी definition याद रखेंगे. And this angle is measured in radians. तो आप लोग लिखिए SI unit. The SI unit of angular displacement is radians. ठीक है, रेडियस की शॉर्ट फॉर्म है RAD, राइट? अच्छा, आपको प्रीवियसली जो एंगल्स पता हैं 2000 एंगल्स इन डिग्रीज, तो मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ एंगल इन डिग्री और दूसरी साइड पे लिख लेता हूँ एंगल इन रेडियंस. ठीक है, सो कीप इन माइंड दैट 360 डिग्रीज, एक जब सर्कल कंप्लीट होता है तो 360 डिग्रीज कवर होते हैं. सो 360 डिग्रीज आर इक्वल टू
2 पाई रेडियंस। ठीक है, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 पाई को एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो अगर दोनों साइड्स को मैं हाफ से डिवाइड कर दूंगा, यू विल गेट 180। ठीक है, एंड 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 इज पाई रेडियंस। तो बच्चों इसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, राइट। सिमिलरली अगर आप इसको फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 90 डिग्रीज आर इक्वल टू pi by 2 radians, right? Similarly 60 degrees are equal to pi by 3 radians, ठीक है। 45 degrees are equal to pi by 4 radians, and similarly 30 degrees are equal to pi by 6 radians, right? So how to convert the angle from radians to angles in degrees and angle in degree from angle to radians, ठीक है। आप लोग इसका फॉर्मूला देखिए, angle in radians is equal to angle in degrees multiplied by pi divided by 180 degrees, right? देखें न्यूमेरिकल वैल्यू एंगल की किस में बड़ी होती है, डिग्रीज में या रेडियंस में? ठीक है, मोर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू इज इन डिग्रीज। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि पाई बाय 2 एक छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वेयर एज 90 डिग्रीज एक न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपने लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू को स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आप उसको स्मॉलर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई बाय 180 इज़ अ स्मॉलर फ्रैक्शन, राइट। और अगर एंगल इन रेडियंस को एंगल इन डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, मतलब लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यू विल मल्टीप्लाई इट विद अ लार्जर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसी में से हम एंगल इन डिग्रीज को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाते हैं। एंगल इन डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल इन रेडियंस मल्टीप्लाइड बाय पाई 180 divided by pi, right? So using this formula you can convert angle in radians to angle in degrees, right? So what is the numerical value of 1 radian? Let's convert 1 radian in degrees. आप कौन सा वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे? आपके पास जो एंगल गिवन है दैट इज़ इन रेडियंस और आपने इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, सो यू विल सिलेक्ट दिस सेकंड फॉर्मूला, राइट। आप लोग लिखे एंगल इन डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल इन रेडियंस मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, एंगल इन रेडियंस की जगह 1 रेडियन सब्सटीट्यूट करें, 1 रेडियन मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाय पाई, राइट। अगर हम कैलकुलेटर से इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म करें दैट विल बी इक्वल टू 57.3 degrees, right? So I can say that 1 radian is equal to 57.3 degrees. फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ठीक है, इनफैक्ट 1 रेडियन की डेफिनेशन आपके सिलेबस का पार्ट भी है। ठीक है, अच्छा बच्चों, आप लोगों को ओ लेवल से एक इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ आर्क लेंथ। ठीक है, एक आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला है, एस इक्वल्स आर थीटा। ठीक है, वेयर एस इज द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड थीटा इज एंगल इन रेडियंस। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर इस सिचुएशन में जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के अगर इक्वल हो जाए, मैं आर्क लेंथ की जगह रेडियस सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, I will say that radius is equal to radius times theta. Theta is equal to radius divided by radius, which is equal to 1, or you can say 1 radian, right? तो आप लोग 1 रेडियन को डिफाइन करें, आप लोग लिखे डिफाइन 1 रेडियन और सिंपली रेडियन। ठीक है, it is an angle subtended by an arc, angle subtended by an arc
at the center of circle such that arc length is equal to the radius of the circle, such that arc length is equal to the radius of the circle, right? मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ. लेट सपोज दिस इज अ सर्कुलर पाथ एंड दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट दिस पॉइंट. ठीक है, लेट्स कॉल दिस पोजीशन पोजीशन ए वंस अगेन. ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आई एम कॉलिंग दिस पोजीशन पोजीशन ए. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से 1 रेडियन एंगल कवर करेगा दैट इज ऑलमोस्ट 57.3. तो आप रूलर पे देख सकते हैं कि मैं ऑलमोस्ट 57 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, सो इट हैज़ रीच पोजीशन दिस, राइट. दिस एंगल इज in degrees, this value is 57.3 degrees. In fact, this value is also equal to 1 radian. ठीक है, so what does the definition say? It is an angle. ठीक है, डायग्राम में देखें, it is an angle subtended by an arc, right? It is an angle subtended by an arc such that arc length is equal to the radius of circle. राइट, ज़रा दोबारा देखें. इट इज़ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क सच दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. राइट, तो बच्चों आप लोगों को ये डेफिनेशन एज इट इज़ याद होनी चाहिए. इसको एक बारी दोबारा से रिपीट करते हैं. इट इज़ एन एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल सच दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल. इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 5 मीटर्स है, अगर उसकी आर्क लेंथ भी एग्जैक्टली 5 मीटर्स होगी तो जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा होगा दैट एंगल विल बी 1 रेडियन एंड इन डिग्रीज दैट वैल्यू इज 57.3 डिग्रीज. ठीक है, लार्जर रेडियस होगा तो आर्क लेंथ भी लार्जर होगी. कंडीशन ये है कि आर्क लेंथ मस्ट बी इक्वल टू the radius of circle. Such angle will be angle of 1 radian.